نیا وکیل کرنے جا رہے ہیں جو انڈیا میں کرے گا کیس، اور یہاں ہم اس کو پھر اپنی نگاہ میں رکھیں گے کہ پیش رفت ہو رہی ہے، ورنہ سرکار تو کچھ بھی نہیں کر سکتی پاکستان کی. دیکھیے سرکار کا وہی مسئلہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن انصار بڑھنے کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ایک ہے مگر دنیا پہ بھاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کریں گے. میرا ان سے سوال ہے کہ انہوں نے غلام حیدر کے بچوں کے لیے کیا کیا ہے، کہاں سو رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے ایسا جو ان کے لیے اٹھایا ہو؟ اگر آپ کو وزارت خارجہ میں جا کے وزارت خارجہ میں داخل بھی نہ ہونے دیا جائے تو وہ انصار بڑھنی کا قصور نہیں، غلام حیدر کا قصور نہیں، آپ کے اپنی ذات کا قصور ہے کہ آپ وکیل ہو کے کہیں جاتے ہیں اور آپ کو وہاں وزارت میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ میرے لیے بھی تکلیف کا مقام ہے. تو میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا. جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، میری جو برنی لیگل سولیسیٹر فرم ہے لندن میں، اس نے نوٹسز بھیجے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو اور اس کے رپلائی بھی آئے ہیں. وہ میں رپلائی کسی وقت منگوا کے وہاں سے غلام حیدر کو دے دوں گا، آپ کو دے دوں گا، آپ دیکھیں. چلائیں گے. اور وہ وکیل بھارتی نہیں ہوگا. اب جو وکیل ہوگا وہ بھارتی نہیں ہوگا. 100 میں سے 70% چانسز جو ہیں وہ لیڈیز وکیل کے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے انصار برنی صاحب کہاں سو رہے ہو، کدھر سو رہے ہو، تو ان کی بھی میرے خیال سے بولتی بند ہو جائے گی. ان کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ انصار برنی صاحب کہاں سو رہے ہیں، کدھر سو رہے ہیں. چلے خیر، وہ مومن ملک صاحب سے تو پہلے وہ رپورٹیں لے کے لوگ پیش کر دیتے تھے، اب کہاں سے لوگے رپورٹ؟ تو دوستو جو رپورٹیں آپ کو انشاءاللہ ہمارے پاکستانی چینلز میں ملیں گی، ٹھیک ہے، شاہد حسین بھائی ہوں، اقرا میڈم ہو یا ہمارا چینل ہو، انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل سے رپورٹس ملیں گی. جھوٹی باتوں کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سنویدھان اچھا ہے، ہمارا قانون اچھا ہے. تو آپ جواب دیں کہ آپ کا سنویدھان اچھا ہے کہ پاکستان کا سنویدھان اچھا ہے؟ پاکستان اگر آپ کہتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے، پاکستان بھوکا ننگا دیش ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا قانون آپ سے کہیں بہتر ہے. السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. تو میری دعا ہے ہمیں دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. تو دوستو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتا ہوں میں آغاز، اور بہت بڑی خبر اور بہت بڑے خلاصے کے ساتھ میں وقاص عباس آج حاضر ہوا ہوں. تو دوستو آج سیٹرڈے کا دن ہے اور کل جو فرائیڈے تھا گزشتہ دن میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میری کچھ طبیعت ناساز تھی، کچھ بہتر نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا ہوں. تو دوستو میں بہت بڑی خبر سے آپ کو آگاہی دینے جا رہا ہوں. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جیسے مومن ملک صاحب غلام حیدر بھائی کی کیس میں سب سے پہلے جو وکیل تھے پاکستان سائڈ سے وہ تھے روشن علی عظیم صاحب. تو اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر جب مشکلات پیش آ رہی تھیں، اس طریقے سے کیس نہیں ہو پاتا بھارت کے اندر آسان، تو پھر مومن ملک سر کو انصار برنی ٹرسٹ کے تحت ہائر کیا گیا اور تمام جو اتھارٹیز تھیں کیس کے حوالے سے وہ مومن ملک صاحب کو دی گئی. تو مومن ملک صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کیس کو آگے لے کر چلے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ سیاسی بنیادوں پر مومن ملک صاحب کو کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو تقریباً 1 سال 3 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، مومن ملک صاحب کو 15 مہینے ہو چکے ہیں اس کیس کو لیے ہوئے، مگر کیس میں کوئی خاطر خواہ کوئی بھی پیش رفت نہیں تھی. تو دوستو کل ایک بہت بڑا نرنے لیتے ہوئے انصار برنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کیس کو، اب غلام حیدر کے کیس کو اثر نو پھر سے ایک مرتبہ زیرو سے، یعنی کہ دوبارہ سے چلائیں گے کیس کو اچھے طریقے سے. جو مومن ملک صاحب نے کوششیں کی میں اس کو آج بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. ہرگز میرے الفاظات یہ نہیں ہے کہ مومن ملک صاحب نے کچھ نہیں کیا، مومن ملک صاحب نے بہت کچھ کیا، مگر ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اور مومن ملک صاحب کی تمام تر محنتوں کا جو رزلٹ آیا وہ زیرو تھا. اس کی وجہ مومن ملک صاحب نے، اس کی وجہ خود بھارت کا سنویدھان، بھارت کا قانون ہے. جو آج لوگ اب تک جھوٹی باتوں کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سنویدھان اچھا ہے، ہمارا قانون اچھا ہے، تو آپ جواب دیں کہ آپ کا سنویدھان اچھا ہے کہ پاکستان کا سنویدھان اچھا ہے؟ پاکستان اگر آپ کہتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے، پاکستان بھوکا ننگا دیش ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا قانون آپ سے کہیں بہتر ہے. جب بادل بابو پاکستان میں اللیگل انٹری کر کے آیا، جب وہ حراست میں آیا، تو کورٹ نے، عدالت نے، پاکستانی جوڈیشری نے فوراً فاسٹ ٹریک پہ کیس کو چلاتے ہوئے اس پہ کیس
दायर करते हुए कोई दुश्मनी उससे नहीं निकालने की कोशिश की है कि अगर बादल बाबू इंडियन है तो उसको 50 साल की सज़ा दे दो, 20 साल की सज़ा दे दो। 3 साल की सज़ा बनती है हमारे कानून के मुताबिक, 3 साल से लेकर 1 साल तक की। तो आप ये देखें कि वो किसी भी मामले के अंदर नहीं पाया गया, किसी दहशतगर्दी के मामले में नहीं पाया गया, ठीक है। वो बयानात अपने चेंज करता रहा जिससे लोगों को तशवीश होती रही, मगर वो किसी भी किस्म के मामले में नहीं पाया गया। तो हमारी जुडिशरी अदालत ने उसको 1 साल की सज़ा दी, 6 महीने उसकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, 6 महीने बाद वो छूट कर भारत चला जाएगा। तो इसके बरक्स अब हम भारत में देखते हैं, सीमा हैदर को पकड़े गए वहां पर इस वक्त तकरीबन 2 साल 3-4 माह हो चुके हैं ना, तो अब तक उसकी चार्जशीट ही पेश नहीं हुई। आप ये देखें तो फिर आप कहते हैं कि हमारा कानून बहुत अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, काम हो रहा है, अंदर खाने काम हो रहा है, अंदर खाने काम हो रहा है, घर में काम हो रहा है। ये कौन सा काम है जब तक नजर ही नहीं आ रहा काम हो रहा है, काम हो रहा है। कल अंसार बर्नी साहब ने, अभी जो आपने क्लिप सुना होगा, अंसार बर्नी साहब ने बड़ी ही ज़बरदस्त ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगर जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, तो वो कहते हैं कहाँ है आपका काम, कहाँ है आपका काम। और अंसार बर्नी साहब ने यह भी कहा कि एक इतना बड़ा वकील मोमिन मलिक साहब जब अदालत में जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मोमिन मलिक साहब नहीं है, उसकी वजह वहाँ का कानून है जो हिंदूज के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, दूसरे मुल्क के लोगों के लिए अलग है। वो बज़ाहिर नजर आता है, उसमें क्या है आप बताएं। अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम का कानून अलग अलग नहीं है तो क्यों अब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिला है? आज क्यों मोमिन मलिक साहब को जो है अंसार बर्नी साहब ने कहा, यानी कि इस केस मोमिन मलिक साहब से वापस ले लिया गया है, उसकी वजह क्या है? क्यों मोमिन मलिक साहब कुछ भी नहीं कर पाए? उसकी वजह क्या है? आप जाने, आप बात करें, नहीं इस पे बात नहीं करनी, हम तो बात करेंगे रीमा पे, क्योंकि अपना कानून तो एक्सपोज हो चुका है भारत का, ठीक है। हम बात करेंगे रीमा पे। गुलाम हैदर ने अपने दोस्त को तो खिलाफ तो पूरी कानूनी कार्रवाई कर दी, पुलिस केस कर दिया, यूं कर दिया, स्ट्राइक मार दी, चैनल उड़ा दिया, रीमा को क्यों नहीं अंदर कराया? अरे भाई रीमा का मामला तो 2 साल पुराना है, आप उस बात को छोड़ो ना। अभी इस वक्त सीमा हैदर कहाँ है ये बात करो, सीमा हैदर के, गुलाम हैदर के बच्चे कहाँ हैं ये बात करो। इस पर बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब इस पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अपना पेट नंगा होता है ना, हक पे बात करनी नहीं है। और जो महिलाएं हक पे बात करती हैं उनको गिराना है, उनको ये बताना है कि ये तो पाकिस्तान के हामी हैं, ये तो पाकिस्तान के साथी हैं, ये तो खाते हैं आका हैं, ये पाकिस्तान का गुण गाते हैं। अरे भैया, जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो कोई बेवकूफ़ है क्या? वो अपने मुल्क से प्यार नहीं करते? वो आपसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करते होंगे, बेशक और करते हैं। हर इंसान को, कोई भी इंसान हो, भारतीय हो, कोई भी हो, उसको अपने मुल्क से प्यार होता है, मगर जहाँ बात सही ना हो वहाँ तो कम से कम हाँ और ना, यस और नो तो करना चाहिए। अगर एक मिसाल है, मेरे अंदर, मेरे भाई के अंदर कोई गलती हो और मैं ना मानूं, तो इसका मतलब है मैं ही सही नहीं हूं ना। गलती तो गलती होती है, किसी के वालिद की भी गलती हो, उसको ये तो समझना चाहिए कि मेरा वालिद भी गलती पर है, मगर नहीं, मेरा देश का कानून अच्छा है। अगर आपके देश का कानून अच्छा है तो गुलाम हैदर को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? तो गुलाम हैदर का केस अब तक क्यों जो है कहते हैं जी अदालतों तक अब पहुंचा है? आप ये बताएं, जो बादल बाबू का केस था उसमें किस वकील को यहाँ मेहनत करनी पड़ी? हुआ ना, गवर्नमेंट ने वकील फराम किया, जो भी वकील साहब हैं उन्होंने कोशिश करी। बादल बाबू का जो मामला था वो उसको कन्विक्टेड हुआ, उसको जो भी 1 साल की सज़ा मिली, 6 महीने सज़ा काट चुका है, 6 महीने चले, और 6 महीने सज़ा में भी आपको नज़र आता है कि वो कहीं जो उसको दिखाया गया था कि वो किसी परेशानी में हो, उसको बहुत मारपीट की गई हो, वो तो फिर भी ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान ही रहूँगा, मैं कभी भारत नहीं जाऊँगा। तो हमारा मुल्क तो ये नहीं देख रहा कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसकी जान को ख़तरा होगा तो इसको हम इसी मुल्क रख लेते हैं। बल्कि आप दूसरी तरफ देखें, सीमा हैदर ये कहती है कि मेरी जान को ख़तरा है, ठीक है। उसने मर्सी एक्ट के तहत के उसने रहम की अपील की है, मुझ पर रहम किया जाए, मेरे को पाकिस्तान में मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों को भी मार दिया जाएगा, तो लिहाजा रहम की अपील सीमा हैदर ने की है कि मुझे रहम दिया जाए, मतलब रहम मुझ पर किया जाए और मुझे यहाँ रहने दिया जाए। तो मैं मोदी साहब से भी पूछता हूँ, मैं भारत के लोगों से पूछता हूँ, तो फिर उन रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं जो आते हैं पनाह लेने के लिए, जो उस तरफ उनको जो बुद्ध मजहब के लोग हैं वो उनको जानों से मार देते हैं, वो अगर पनाह लेने के लिए भारत आते हैं तो भारत सरकार क्यों उनको समंदर की लहरों में छोड़ देती है वापसी? क्यों समंदर की लहरों में वापसी छोड़ देती है? इसका किसी के पास जवाब है? नहीं है।
उन मुसलमानों को तो वापसी समंदर में धकेल दिया जाता है। अगर तुमको बुद्ध मजहब के जो लोग हैं, बुद्धिज्म जो मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो तुमको मार रहे तो मार रहे दो, हमारा इससे क्या ताल्लुक है, वो तुम्हारा मुल्क है, जाओ वापसी, ठीक है। और एक तरफ जब एक महिला पाकिस्तान की 4 बच्चे लेके गुलाम हैदर की गैर कानूनी तौर पे घुस के वहाँ बैठ जाती है, जिसके पास ना आधार कार्ड है, जिसके पास ना, और पूरे भारतीय कानून की धज्जियाँ उड़ाती है, 3 स्टेशन पार करके चौथे जो सूबा है उसमें चले जाती है। हैरान है भाई, 3 स्टेशन पार करे, सॉरी 3 उसने शहर पार कर लिए एक तरीके से, वो पार करके और आराम से जो है चौथी जगह में जाकर रऊपुरा में बैठ जाती है। और जब पकड़ी जाती है तो उससे क्या क्या चीज़ें बरामद नहीं होती, फिर भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अगर वो जासूस है नहीं है, अब तक वो जेल में क्यों नहीं, हमारा ये सवाल भी बनता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो खबर मैंने आपको दी है कि अब बहुत ही जल्द जो अंसार बर्नी साहब ने कहा है कि वो लंदन के थ्रू जो है केस दोबारा से चलाएंगे, और वो वकील भारतीय नहीं होगा। अब जो वकील होगा वो भारतीय नहीं होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ये तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अब वो जो है अंसार बर्नी साहब वो एक इंटरनेशनल लेवल का जो वकील हायर करेंगे। और वो मैं दोस्तों आपको एक बात ये भी बताना चलूँ कि 100 में से 70% चांसेस जो हैं वो लेडीज़ वकील के हैं। तो वो इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे देखेंगे कि वो लेडीज़ होती हैं कि जेंट्स होते हैं। जो खबर हमारे तक हैं तो बड़े अच्छे अच्छे जो वकील हैं इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने भी गुलाम हैदर से रब्ता किया, और महिलाओं ने भी रब्ता किया, बड़ी बड़ी वकला ने रब्ता किया, जो वर्ल्ड लेवल की जो लेडीज़ वकील हैं उन्होंने भी रब्ता किया है। तो अंसार बर्नी साहब सबको देख रहे हैं, परख रहे हैं, और जो वो बेहतर समझेंगे, क्योंकि वो खुद एक लॉयर हैं, वो खुद एक एडवोकेट हैं अंसार बर्नी साहब, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे थे अंसार बर्नी साहब कहाँ सो रहे हो, किधर सो रहे हो, तो उनकी भी मेरे ख्याल से अब बोलती बंद हो जाएगी, उनको भी लग पता जाएगा कि अंसार बर्नी साहब कहाँ सो रहे हैं, किधर सो रहे हैं। चले खैर, वो मोमिन मलिक साहब से तो पहले वो रिपोर्टें लेके लोग पेश कर देते थे, अब कहाँ से लोगे रिपोर्ट। तो दोस्तों जो रिपोर्ट है आपको इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी चैनल्स में मिलेंगी, ठीक है। शाहिद हुसैन भाई हो, इकरा मैडम हो, या हमारा चैनल हो, इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल से रिपोर्ट्स मिलेंगी, और गुलाम हैदर भाई के चैनल से भी मिलेंगी। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस केस में मज़ीद नई पेशरफ जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।